मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज। I'm very excited today. आज का वचन हमें और हमारी जनरेशन्स के लिए है। Today's word is for us and for our generations. ओके, पर इससे पहले हम वचन में जाएं, Before we go into the word, अपने हाथों को उठाओ lift up your hands wherever you are. और आत्मा और सच्चाई से आज प्रभु यीशु मसीह से कहो कि प्रभु तू मुझसे आज बात कर। And tell the Lord Jesus with your spirit and truth, Lord, talk to me today. प्रभु मैं केवल एक सरमन सुनने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। I have not come here to hear a sermon. मैं किसी इंसान को देखने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। I have not come here to see a man. मैं तेरे जीवित वचन को ग्रहण करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। But I have come here to receive your living word. Amen? बोलो से Tell him, अपने मुंह को खोलो आज। open your mouth today. ओके, हालेलुया। उसको बोलो प्रभु आज का तेरा वचन Tell him your word today, Lord. मेरे लिए जीवन की रोटी हो। Let it be the bread of life for me. हालेलुया। मेरे पीछे बोलो आज का वचन मैं आत्मा और सच्चाई से ग्रहण करता हूं। मैं वचन का प्रेमी हूं। परमेश्वर का वचन मेरी रोटी है। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूं कि मैं उसके वचन को सुनने वाला और उस पर चलने वाला हूं। आज का वचन एक अच्छी भूमि में बोया जाता है और वह मुझे पहले 30 गुना, फिर 60 गुना और फिर अंत में 100 गुना फल देगा, यीशु के नाम में। आमेन। Amen. हालेलुया। You can be seated. Okay. इससे पहले मैं वचन में जाऊं, I really want to honor an amazing man of God. We have Dr. P.G. Varghese, uncle, with us. Before I go into the word, I just want to honor एक अद्भुत परमेश्वर के जन डॉक्टर पीजी वर्गीस हमारे बीच में है। We love you, uncle. Thank you so much for coming here. हम आपसे बहुत प्यार करते हैं अंकल, बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। Amen. Amen. Also, we have one good news. एक अच्छी खबर भी है। Today, it's our Mumbai Church's first anniversary. आज मुंबई चर्च की पहली सालगिरह है। Come on, wave your hand towards Mumbai. Tell them that Mumbai, we love you. मुंबई की ओर अपने हाथों को वेव कर रहा, कहे मुंबई हम आपसे प्यार करते हैं। Hallelujah. Come on, Mumbai, why don't you wave back if you can look at us? Can you hear? If you can hear me, come on, wave back. Okay, I think there is a delay in the live. Okay. All right, hallelujah. Okay, look what the Lord has done. देखो प्रभु ने जो किया है। एक साल में In 1 year, 400 से ज्यादा members. more than 400 members. One of the fastest growing church of Mumbai. मुंबई की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कलीसिया। Hallelujah. Hallelujah. Amen. और I also want to honor our leaders in Mumbai, Jitesh and Poonam. जो हमारे लीडर्स हैं मुंबई में, जितेश और पूनम, मैं आपका भी आदर करना चाहता हूँ। Amen. We are so blessed to have them as faithful leaders, faithful spiritual sons and daughters. हम ब्लेस्ड हैं कि वो विश्वास योग्य आत्मिक बेटे और बेटी हैं। Amen. And yeah, अगर आप मुंबई जाएंगे और वहां बैठेंगे, जितने भी लोग वहां गए हैं वो कहते हैं अंतर पता नहीं चलता कि हम दिल्ली में नहीं हैं।
Come on. All those who've been to Mumbai, they say, we don't realize the difference. It doesn't feel like whether you're in Delhi or Mumbai. Okay, and this is just the beginning. और ये केवल शुरुआत है. Okay, only 1 year, सिर्फ 1 साल में and it's growing, and it will keep on growing. वो बढ़ रहा है और बढ़ता चला जाएगा. So we wish you a very blessed first anniversary, FOLJ Mumbai. So FOLJ मुंबई आपको एक बहुत ही blessed पहली सालगिरह. Hallelujah. Okay, you can be seated. आप बैठ सकते हैं अपने स्थानों पर. अब मैं सीधे वचन में जाना चाहता हूँ. I'll go straight into the word. Now, आज समय कम है, We have less time वचन today. ज्यादा है, There is more word. तो मैं जल्दी से प्रचार करूंगा और आप जल्दी से सुनना. I'll preach quickly, you hear quickly. Okay? Okay? Hallelujah. और मुझे पता है आज बहुत सारे लोगों को इनकन्वीनियंस हुई है जो बाहर ओवरफ्लो में बैठे हैं, बट बहुत जल्दी हम लोग सब एक साथ बैठ पाएंगे बिल्डिंग में. And I know it's been an inconvenience for many people who are sitting outside in the overflow, but very soon we'll all be sitting together. Okay? Hallelujah. So almost 2,500-3 हजार लोग बाहर बैठे हैं आज. 2,500-3,000 people are sitting outside. So तैयार हैं आप वचन के लिए? Are you ready for the word? मेरी दिल की इच्छा ये है कि आप इतना वचन सीख जाओ कि आपको मेरी जरूरत ना पड़े. My heart's desire is that you eat the word, you learn the word so much to that depth that you don't need me anymore. Okay? क्योंकि जो कुछ भी आपको चाहिए वो खुदा के कलाम में है. Because whatever you need is in the word of God. Anything that you need is in this word. जो कुछ भी आपको चाहिए वो खुदा के वचन में है. और आप जानते हैं जब हम जो मसीह लोग हैं, हम पे आज बहुत सारे लोग बोलते हैं चीजें. We those who are believers, people say many things about us. They say many allegations against us. I want to tell you, Bible is not a mythological book. मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल कोई कथा कहानी नहीं है. Okay? हम अनपढ़ लोग नहीं है जो अंधों की तरह कोई भक्ति कर रहे हैं. We are not illiterate people who are blindly following something. Okay? कई लोग क्योंकि आज क्या बोलते हैं कि ये साइंस क्या बोलती है. अरे साइंस पढ़ी है कभी? What some people say, have you read this? Have you studied science? तो आज मैं आपको थोड़ा साइंटिफिक वे में फेथ सिखाना चाहता हूं. So I want to teach you faith in a scientific way today. और आज के बाद आप कभी नहीं बोलोगे कि साइंस कहती है कि परमेश्वर नहीं है, ये सब बकवास है, ये ढोंग है. And after today, you will never say that science says there is no God and all this is just hypocrisy. There's nothing. Okay? So सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, फिर मैं आपको वचन में जाऊंगा. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो बेस्ट टॉप साइंटिस्ट रहे हैं, टॉप बेस्ट, वे परमेश्वर के विश्वासी थे. The first thing I'll tell you is the top scientists, they were all believers. They believed in God. Okay? So मैं चाहता हूं टीम, if you can put, I just want to tell you so that you can do a research. आप खुद इसको जान सकते हो. यहां पे आपको कुछ भी ऐसी बात नहीं बताई जाती जो कथा है. मैं जो आपको बता रहा हूं आप खुद रिसर्च कर सकते हो उसके बारे में. Whatever I'm telling you, you can go research it yourself. There's Come on, no put the story slide. tales. Emits beams of light particles called photons at a when a laser no. emits beams of light particles Ripta, called the slides, the photons at a scientists. Okay, not this. What the scientists have said. I want to show you. मैं आपको केवल 4 हजारों साइंटिस्ट हैं, बट 4 जो टॉप साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या कहा उसके बारे में आपको बता रहा हूं. आइजैक न्यूटन जो फिजिक्स, मैथमेटिक्स और जिन्होंने लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटी में उन्होंने वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला? द मोर आई स्टडी साइंस द मोर आई बिलीव इन गॉड. आइजैक न्यूटन ने कहा जितना अधिक मैं विज्ञान का अध्ययन करता हूं उतना ही अधिक मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं. ये कोई गली में लौकी बेचने वाला नहीं बोल रहा, ये सर आइजैक न्यूटन बोल रहा है जिनको सर की उपाधि दी गई. This is not a vegetable hawker in your street. This is a scientist, Sir Isaac Newton. ओके? ये टॉप साइंटिस्ट है.
न्यूटन की थ्योरी की वजह से आज एयरक्राफ्ट चल रहे हैं. Because of Newton's theory, aircrafts are operational. He's today. one of the greatest scientists mankind has ever known. सबसे महान वैज्ञानिकों में से हैं जो मनुष्य जाति को आज तक और वो मिले। क्या कह रहे हैं? What is he saying? जितना अधिक मैं विज्ञान का अध्ययन करता हूं, उतना ही अधिक मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूं. The more I study science, the more I believe in God. हालेलुया. अब मैं आपको दिखाता हूं. ओके, दूसरे साइंटिस्ट हम चलते हैं. अब देखिए ब्लेज पास्कल, जो मैथमेटिक्स का पास्कल्स लॉ है, अगर मैथ्स पढ़ी है आपने, उन्होंने क्या बोला? जीसस क्राइस्ट इज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग. अपार्ट फ्रॉम हिम वी कैन ओनली नो कंफ्यूजन एंड डिस्पेयर. ब्लेज पास्कल जो मैथमेटिशियन थे, वो उन्होंने कहा यीशु मसीह हर चीज का केंद्र है, उनके बिना हम केवल भ्रम और निराशा को ही जान सकते हैं. हालेलुया. ओके, ये टॉप साइंटिस्ट हैं. These are top scientists. ओके, माइकल फैराडे, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड केमिस्ट्री में जो थे, उन्होंने बोला द बुक ऑफ नेचर विच वी हैव टू रीड इज रिटन बाय द फिंगर ऑफ गॉड. माइकल फैराडे ने कहा प्रकृति की पुस्तक जिसे हमें पढ़ना है वह परमेश्वर की उंगली से लिखी गई है. और अब जो वन ऑफ द टॉप साइंटिस्ट माना जाता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन, देखते हैं उन्होंने क्या बोला. उन्होंने कहा आई वॉन्ट टू नो गॉड्स थॉट्स, द रेस्ट आर डिटेल्स. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा मैं परमेश्वर के विचार जानना चाहता हूं, बाकी सब विवरण है. और मैं आपको हजारों ऐसे इन साइंटिस्टों के लिखा हुआ बता सकता हूं, पर फिर आपको सरमन नहीं बता पाऊंगा, तो 4 पे रुक जाता हूं. I can tell you thousands of scientists like that who have said things, but I'll just stop at 4. ओके, सो इस बात को आप समझो कि faith is not blind. We are not following a mythological figure with a blind faith. I want you to understand, विश्वास अंधा नहीं है. हम आंखें बंद करके एक भ्रम के पीछे नहीं चल रहे हैं. Some people say faith is blind. Faith is not blind. Faith can see what your natural eyes cannot see. कुछ लोग कहते हैं विश्वास अंधा है. विश्वास अंधा नहीं है. विश्वास वो देख सकता है जो आपकी शारीरिक आंखें नहीं देख सकती. Okay? So today I want to teach you. मैं आपको विश्वास सिखाना चाहता हूं. साइंस के उसमें कैसे साइंटिस्ट आज, अब साइंस इज कैचिंग अप टू व्हाट बाइबल सेज एंड बाइबल हैज सेड thousands of years ago. I want to teach you, जो बाइबल कह चुकी है हजारों सालों पहले, विज्ञान अब उस तरफ बढ़ रहा है. अब जाके मैं आगे इसमें आऊंगा क्योंकि वो दूसरे सरमन में आपको दिखाऊंगा. मगर जब बाइबल कहती है, जब क्रूस पे यीशु मसीह गया और दिन के समय में अंधेरा हो गया, अभी नासा ने रिसेंटली जब उसको एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला बिल्कुल उस डेट में दिन में अंधेरा हो गया था 4 घंटे के लिए. When NASA recently did an experiment, they found out on the day of crucifixion there was darkness for 4 hours during daytime. और जो जोशुआ के बारे में जब कहा जाता है, जब उसने बोला चांद वहीं रहे, और जब बोला गया है वो एक्लिप्स हुआ, वो एक्लिप्स भी उन्हें बाइबल का मिल गया है. नाउ दे कैन, और ये सब ये नासा ने निकाला है, इंडिया टीवी ने नहीं. And when Joshua spoke to the sun and the moon and they stayed in their place for 3 days, NASA has found out that was true, not India TV, but NASA has given the detail of confirmation. Okay? So यीशु मसीह ने यूहन्ना 17:17 में कहा तेरा वचन सत्य है. Jesus अपनी said, बाइबलों को उठाओ और बोलो परमेश्वर तेरा वचन सत्य है. Jesus said in John 17:17, Lord, your word, Father, your word is the truth. ये कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है. This is not a religious book. ये सत्य है. This is the truth. ये हमारे जीवन का आधार है. This is the basis, the This foundation is of the our life. foundation of our life. ये हमारी जिंदगियों की नींव The है. word of the living God. जीवित परमेश्वर का वचन. Amen. Hallelujah. So when I am eating from God's word, when I am reading God's word, I am not becoming religious, I am knowing the truth. जब मैं परमेश्वर के वचन में से खा रहा हूँ, उसके वचन में से पढ़ रहा हूँ, तो मैं धार्मिक किताब नहीं, लेकिन परमेश्वर के भोजन को, उसके वचन को खा रहा हूँ. बल्कि जितना ज्यादा तुम सत्य को जानोगे, उतना ज्यादा सत्य तुम्हें धर्म की बंधुआई से आजाद कर देगा. But as much as you will know the truth, the more the truth will set you free from the bondage of religion. Amen. Come on, church. Are you alive? जीवित है. Amen. So, मैं आज आपको कुछ
जो साइंस में एक्सपेरिमेंट्स हुए वो मैं आपको बताऊंगा, और कैसे उन एक्सपेरिमेंट से उनको पता चला। अभी जो सारे फिजिसिस्ट हैं, अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें अब हम। And some experiments that the physicists are not able to understand. ओके सबसे पहली चीज जो आइंस्टाइन ने थ्योरी दी, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। The first thing, the story of relativity from Einstein. आइंस्टाइन ने बताया कि कैसे जो एनर्जी है और जो मैटर है वो इंटरचेंजेबल है और एक ही चीज से बना है। Einstein said energy and matter are interchangeable and they are made from the same thing. अपने आसपास देखो, Look around you. when we see around us, you see energy doing everything for us. हम जब अपने आसपास देखते हैं एनर्जी से सब कुछ हो रहा है। Okay, your air conditions are being cooled. आपके एसी ठंडा करते हैं। You came in your car. अपनी गाड़ी से आए, You're hearing me speak from a microphone. मुझे एक माइक में बोलते हुए सुन All रहे this is done by energy. हैं। ये सब कुछ एनर्जी के द्वारा हो रहा है। Okay? और अब साइंटिस्ट को पता लग गया है that words, जो हमारे शब्द हैं, they are energy. Now the scientists have found out that our words are energy. हमारे शब्द वो एनर्जी हैं। Okay? और इस जो एनर्जी और जो शब्द हैं, they are in the wave form. And our words वो एक तरंगों के रूप में हैं। Okay? और inside these waves, they contain matter. और इन तरंगों के अंदर ठोस पदार्थ यानी कि मैटर है। बहुत मजा आएगा आपको। You're gonna enjoy this. अब जब एक नई फिजिक्स की एक नई ब्रांच शुरू हुई जिसको क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, विच इज द स्टडी ऑफ सब एटॉमिक सब पार्टिकल्स। Now when a new branch of physics began, quantum physics, जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टडी है, इट डज नॉट अलाइन विद द लॉज ऑफ नॉर्मल न्यूटोनियन फिजिक्स। ये जो शाखा है ये बिल्कुल भी सामान्य विज्ञान जो है उससे मेल नहीं खाता है। ठीक है, मैं बहुत ही साधारण भाषा में बोल रहा हूं कि आप सब समझ सको। ओके, I'm speaking in a simple language. बोलो मेरे शब्द ऊर्जा है, ऊर्जा में सारा पदार्थ है। Say my words are energy. In the energy is all the matter. कुछ सुनाई दे रहा है? Can you hear something? In the beginning, God said, "Let there be light," and there was light. उत्पत्ति में परमेश्वर ने बोला उजियाला हो जाए और उजियाला हो गया। Okay, now quantum physics can, तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्रिएशन कैसे हुआ। Now quantum physics is able to understand a little bit how the creation happened. Okay, अब ध्यान से सुनो। Hear carefully. शुरुआत में In the beginning, जब परमेश्वर को कुछ भी चेंज करना था, when God had to change जब something, परमेश्वर को कुछ रचना करनी थी, when he had to create something, God didn't use his hands, God used his words. परमेश्वर ने अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं किया, अपने शब्दों का इस्तेमाल किया। Okay, God said, "Let there be light," परमेश्वर ने कहा उजियाला हो He जाए। said, उसने बोला and there was light. और उजियाला हुआ। Where was light? कहाँ था उजियाला? In his words. उसके शब्दों के अंदर। कहाँ था उजियाला? Where was the light? उसके शब्दों में। It was in his words. कहाँ था ये पृथ्वी, ये पहाड़, ये झरने कहाँ थे? Where उसके was the शब्दों में। earth, the mountains, the rivers, सब the कुछ streams? जो आप अपने आसपास देखते हो कहाँ था? परमेश्वर के शब्दों में। Everything that you see around you was in the words of God. That's why the Bible says in Hebrews 11:3, by faith we understand that the worlds were framed by the word of God. इसीलिए इब्रानी 11:3 में हम देखते हैं कि विश्वास के द्वारा हम जानते हैं कि सृष्टि की रचना परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा की। Okay, so hear this. God uses his words as tools. परमेश्वर अपने शब्दों का इस्तेमाल औजारों की तरह करता है। God said and God saw. Okay, can you put Genesis 1:3 and 4? परमेश्वर ने बोला और परमेश्वर ने देखा। Okay, then God said, "Let there be light," and there was light. तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया।
what was in the wave form materialized. जो तरंगों के रूप में था उसने ठोस रूप ले लिया, Because energy and matter are interchangeable. क्योंकि एनर्जी और मैटर एक दूसरे का रूप ले सकते हैं. Okay? So परमेश्वर ने कहा God और वैसा said. God said, उसके बाद लगाइए and God saw. और परमेश्वर ने देखा. मेरे पीछे बोलो, परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर ने देखा. फिर से बोलो, परमेश्वर ने कहा Say, God said और परमेश्वर ने देखा. and God saw. हम चाहते हैं कि पहले हम देखें तब हम कहें. We want to first see and then we want to say it. Saying comes before seeing. बोलना देखने से पहले होता है. I said saying comes before seeing. मैंने कहा बोलना देखने से पहले होता है. ओके? अब इसके बाद आप अगर पूरा क्रिएशन पढ़ोगे, If you read the entire creation, 10 बार परमेश्वर को बोलना पड़ा. God said and God saw. God said and God saw. God said and God saw. 10 times God had to say, परमेश्वर ने बोला और परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने बोला फिर परमेश्वर ने देखा. Okay? So what is God doing? परमेश्वर क्या कर Whatever रहे He हैं? wants to create, He speaks. जो कुछ वो बनाना चाह रहे हैं उसको बोल रहे हैं. ठीक है? अब Now, जेनेसिस 1:26 में परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं. इसका मतलब क्या है? Genesis 1:26, then God says, let us make man in our image according to our own likeness. What does this mean? जल रहे हैं बल्ब? भीख नहीं मांगनी है भैया. Don't beg. धर्म ने हमें भीख मांगना सिखाया है. Religion has taught us to beg. यीशु ने हमें राजा बनाया है. Jesus has made us kings. Hallelujah. The Bible says in Revelation 5:10 that He has made us kings and we shall reign on this earth. प्रकाशित वाक्य 5:10 उसका वचन कहता है, यीशु ने हमें राजा और याजक बना दिया कि हम इस पृथ्वी पर राज्य करें. Amen. मैं चाहता हूं ध्यान से you follow me so that you understand this. मेरे साथ साथ रहना ताकि समझ पाओ. अब जब परमेश्वर, आपको पता है पृथ्वी गोल क्यों है आज? Do you know why the earth is स्क्वायर round? क्यों नहीं है? Why is it not a square? ट्रायंगुलर क्यों नहीं है? Why is it not triangular? क्योंकि परमेश्वर ने बनाने से पहले उसको अपने अंदर देख, बिफोर ही सॉ विद हिज आईज, ही सॉ इट विद हिज हार्ट. Because परमेश्वर ने उसको अपनी आंखों से देखने से पहले अपने भीतर अपने दिल में उसको देखा. Because the Bible says our God knows the end from the beginning. He's the Alpha and He's the Omega. बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर अंत को शुरुआत से जानता है, वो ही अल्फा और ओमेगा है. Okay? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं. Let me tell you something. जब एक पेंटर एक पेंटिंग बनाता है, When a painter draws a painting, makes a painting, जब वो बना देता है तो आप पेंटिंग तब कागज में देखते हो. when he finishes making it, you see it on the paper. मगर उस कागज में पहले पेंटर पहले से अपने दिल में वो पेंटिंग देख चुका है. But before it came on the canvas, the painter saw the painting in his heart. किसने उसको ये क्षमता दी? Who gave him this ability? This is a God ability to see that thing which does not exist as if it does. ये परमेश्वर की क्षमता है एक चीज को इस तरह देखने की जो कि है ही नहीं, जैसे कि वो सामने रखी है. Okay, are you getting what I'm saying? और वो परमेश्वर who can see the end from the beginning, And that God जो शुरुआत से अंत तक देख सकता है, made us in His own image and likeness. उसने अपनी छवि अपनी समानता में हमें बनाया. And we think, what can our words do? और हम सोचते हैं हमारे शब्दों से थोड़ी कुछ होगा. That's why there are people doing religious prayers and begging God from decades and have not received any answer. इसीलिए लोग दशकों से भीख मांग रहे हैं और कोई उत्तर नहीं देखा उन प्रार्थनाओं का. Because they don't understand how God operates. क्योंकि वो नहीं समझते कि परमेश्वर किस तरह से काम करते हैं. And God has created principles और that govern this universe.
परमेश्वर ने सिद्धांत बनाए हैं जिनके द्वारा ये सृष्टि काम करती है. ओके, सो सबसे पहली बात, इस बात को समझ जाओ दैट वर्ड्स आर एनर्जी. The first thing you need to understand, जो शब्द हैं वो ऊर्जा है, एनर्जी है. वर्ड्स कैरी फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी. शब्दों में फ्रीक्वेंसी और एनर्जी होती है. ओके, एंड when you speak words, और they जब- can interact with the matter at the molecular level. जब आप शब्दों को बोलते हो तो वो ठोस पदार्थों को कणों के स्तर तक प्रभावित कर सकते हैं. प्रभाव होना पहले कणों के स्तर में शुरू होता है. It starts at जब the आप बोलते atom. हो तो कणों के स्तर में प्रभाव शुरू होता है, मगर होते 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 फिर उसका प्रकटीकरण हो जाता है. The effect starts at the atomic level and it starts affecting from the atoms to manifesting on the entire matter. That's why the Bible says we don't walk by what we see, we walk by faith. इसीलिए बाइबल कहती है जो हम देखते हैं उसके अनुसार नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं. Okay, let me tell you what the professors in MIT say about words. MIT के जो प्रोफेसर है वो क्या कहते हैं शब्दों के बारे में? They say every word you speak is a burst of measurable energy. आपके द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द मापने योग्य ऊर्जा का विस्फोट है. What? One of the most esteemed universities, सबसे एस्टीम यूनिवर्सिटीज हैं, they are saying this. वो ये कह रहे हैं. Are you seeing what I'm saying? आप देख रहे The हैं जो मैं कह रहा हूं? scientists now are catching to what the Bible has been declaring from thousands of years. साइंटिस्ट अब उस बात को समझ रहे हैं जो बाइबल हजारों साल से कह रही है. Okay, they are saying every word you speak is a burst of measurable energy. So it's not myth, it's not a philosophy that cannot be measured. It's an actual science. You can measure the energy burst when you speak the words. वो कह रहे हैं आपके द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द मापने योग्य ऊर्जा का विस्फोट है. ये कोई भ्रम नहीं है, लेकिन ये मापा जा सकता है. Okay, मशीन रीडिंग में आप हर्ट्स में मेजर कर सकते हो. You can measure it in machine reading in hertz. So जब परमेश्वर ने बोला, When God spoke, it went like waves. तो वो तरंगों की तरह गया. Okay, और उस waves के अंदर क्या था? और उन तरंग, what was in those waves? Matter. Matter. जो भी आप आसपास देख रहे हो, इट्स मेड अप ऑफ मैटर. योर बॉडी इज मेड ऑफ, ऑल द विजिबल वर्ल्ड इज मेड ऑफ मैटर. सारी दिखाई देने वाली दुनिया उस मैटर से बनी है. इस बट पदार्थ इट से बनी. केम फ्रॉम द इनविजिबल फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स व्हिच यू कैन नॉट सी. यू कैन सी मैटर बट यू कैन नॉट सी अ वेव. लेकिन वो सब कुछ ना दिखाई देने वाली तरंगों के द्वारा हुआ. आपको पदार्थ तो दिखता है पर उसके पीछे की जो तरंगे थी वो नहीं दिखती. आपको मेरी आवाज तो सुनाई देती है, You can hear मगर my उस voice. आवाज को आप देख नहीं सकते. You can hear my voice but you cannot see the यू word. कैन नॉट सी साउंड वेव्स जो तरंगे हैं आवाज की वो नहीं दिख रही हैं. बट यू कैन सी द मैटर. लेकिन उसका प्रभाव, जब वो साउंड वेव्स चंगाई लाती हैं किसी को, तो वो आप देखते हो हर संडे को. when those sound waves bring healing you see them every Sunday. जब वो, आज कई लोग कहते हैं ये क्या, ये पागल बना रहे लोगों को. इस बंदे ने बोला उसका ट्यूमर गायब हो गया. Some people say, oh, they are fooling people. This man spoke and his tumor vanished. जी हाँ, Yes, ऐसे ही होता है. this is how it works. यीशु ने बोला और अंधा देखने लगा. यीशु ने बोला और पैरालाइज ठीक हो गया. यीशु ने बोला और समुद्र शांत हो गया. यीशु ने बोला और पेड़ सूख गया. Jesus spoke and the leper got cleansed. The blind got started to see. The storm was quiet. The tree was dried up from the roots. Amen. Are you getting it? Okay. Okay. So put Hebrews 11:3 once again. इब्रानी 11:3. ठीक है, कुछ सीख रहे हैं हम. कि आज के बाद कोई आपको ना बोले आप अंधविश्वास कर रहे हो, Thereafter today, let nobody tell you you're in और superstition. आपको भी ना लगे कि आप अंधविश्वास कर रहे हो. And that you would also not think this is अपने blind faith. पड़ोसी को बोला हम किसी धर्म में नहीं है. Tell your neighbor we are not in any religion. हाँ, मैं आपको बाकी सारियों के साथ साथ ईसाइयत से भी बाहर निकाल रहा हूं यीशु के नाम From में. all the others, I'm also taking you out of Christianity. Amen. So, hear this. By faith we understand that the worlds were framed. When you frame something, there's a designer who sees it. पहले जो डिजाइनर है वो देखता है. आप अपने घर में ऐसे तो नहीं करते ना, ऐसे फेंक देते हो चीजें. यू फ्रेम. यहां पे बिस्तर आएगा, यहां पे साइड टेबल आएगी, यहां पे यू फ्रेम. गॉड फ्रेम द यूनिवर्स विद हिज वर्ड्स. विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना
रचना को यहाँ पर सजाया गया या फ्रेम किया गया लिखा है। एक सजाने वाला अपने घर को देखता है कहां पर क्या रखना है, वैसे ही परमेश्वर ने भी सृष्टि को सजाया अपने शब्दों के द्वारा। ओके, अब आगे देखो। So that the things which are seen, say things which are seen, जो कुछ दिखाई देता है, क्या कुछ दिखाई देता है? what all can you see? Everything around you is seen. जो कुछ आसपास है वो सब। Things that are seen were not made of things which are visible. जो कुछ दिखाई देता है वो उन चीजों से नहीं बना जो दिखती हैं। So किन चीजों से बना? Then what are they उन made of? चीजों से बना जो नहीं दिखाई देती। Of क्या? Words. Of the things that are not seen. Words. शब्दों के द्वारा। Okay. So हुआ क्या? After 2000, the quantum physics is growing now. This branch of science is growing because now they have access. They can see how subatomic particles behave. सन 2000 के बाद जो क्वांटम फिजिक्स है वो बढ़ने लगी। अब वो देख सकते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे काम करते हैं। Okay. So they found out उनको पता लगा कि केवल इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स नहीं है सबसे छोटे, but there is a new, they found out a new element called quarks. उनको पता लगा कि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन सबसे छोटे नहीं, पर लेकिन क्वार्ट्स है सबसे छोटा जो है। और जब क्वार्ट्स के अंदर ढूंढा गया तो वो साउंड वेव्स है। एंड व्हेन दे सॉ इनसाइड क्वार्ट्स, वो एक ध्वनि की तरंग है। So if I can say this, hear अगर this. मैं ये कहूं, सुनिए, Every matter is a condensed form of sound waves. हर एक ठोस पदार्थ ध्वनि की तरंगों को इकट्ठा कर लिया गया और तब दिखाई दिया। मैं आपको इसको अभी दिखाऊंगा कैसे एक्सपेरिमेंट में। I'll show you how. Okay, so when you see this table, जब आप ये टेबल को देखते it looks solid, हैं, ये सॉलिड दिखता है, but this is just sound waves that have come together to form this. लेकिन ये साउंड वेव्स हैं जो इकट्ठी हुई और इससे ये बना है। Your body is made of sound waves. आपका शरीर उन साउंड वेव्स का बना है। This floor that I'm standing on is just sound waves that are vibrating with a very low frequency. ये जो फ्लोर जिस पे मैं खड़ा हूं, ये वो ध्वनि की तरंगों का बना है जो बहुत ही धीमी गति से वाइब्रेट कर रही है। Angels, they vibrate with they oscillate with a very high frequency, so they don't appear to natural eyes. स्वर्गदूत एक बहुत ही तेज गति से वाइब्रेट करते हैं, इसीलिए शारीरिक आंखों को नजर नहीं आते। Okay? That's how you get heavenly visitations. When you meditate on the Bible says the word of God quickens you. That means give you speed. When you start to meditate the word of God, your body starts to vibrate with God frequency. ऐसे ही आपके एनकाउंटर्स होते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं तो आप परमेश्वर की गति से वाइब्रेट करने लगते हैं। Okay? So क्वांटम फिजिक्स में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको बोला जाता है, आप खुद जाके इस पे एक्सपेरिमेंट पढ़ सकते हैं, हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगे। इसको बोला जाता है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। They did an experiment in quantum physics which is called double slit experiment, या फिर इसको ये भी बोला जाता है ऑब्जर्वर्स इफेक्ट, जिसको देखने वाले का प्रभाव कहते हैं। ओके, अब मैं एक वीडियो आपको जल्दी छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको उसको समझाता हूं। I'll show you a small video, then I'll explain it to you. ओके। Screen with two slits, you'd expect to see two strips to correspond with the two slits. Instead, we see a pattern of light and dark bands. This suggests that light behaves like waves that pass through both slits simultaneously, interfering with each other to create the pattern on the second screen. However, when scientists used a measuring device to observe the slit that each photon passed through, the interference pattern disappeared and two strips appeared. The act of observing which slit it went through changed the behavior of the photons. No one knows why observing a particle causes its behavior to change. इन्होंने कहा no one knows why, we know why. उन्होंने कहा कोई नहीं जानता क्यों, लेकिन हम जानते हैं क्यों। ओके, दोबारा से वीडियो चलाइए, म्यूट कर दीजिए, अब मैं इसको समझाता हूं। इन्होंने क्या किया, ये देखिए, ऐसे ट्रे रखी और उसमें जैसे दो ये खिड़कियां बना दी हों और लाइट बीम फोटॉन्स को मारा। आप इसको सरल भाषा में समझो कि मैंने पानी की पिस्तौल से मैंने पानी की पिचकारी मारी इन दोनों खिड़कियों से। तो जब पानी की पिचकारी मारी तो क्या होगा, अगर उसमें लाल कलर है तो पीछे दीवार में दो सीधे लाल
दाग बन जाने चाहिए, ठीक है। मगर ऐसा नहीं हुआ, उसमें बहुत सारी ऐसी लाइंस बन गई। इससे पता चला कि वो तरंगों की तरह गया, ठीक है। अभी वीडियो को रोक दो। क्या हुआ? जो फोटॉन्स इन्होंने भेजे वो कैसे गए? दे वेंट लाइक वेव्स, वेव्स की तरह गए, वो तरंगों की तरह गए। और तरंगे जैसे बनाती हैं, उसने बहुत सारे पैटर्न बना दिए पीछे। And the waves made many patterns at the back. वो ठोस पदार्थ की तरह नहीं गए, मगर तरंगों की तरह गए। It did not go as solid matter but as waves. मगर अब उन्होंने क्या किया? Now what उन्होंने they कैमरा लगाया They put a camera कि देखते हैं कौन सी खिड़की से ये अंदर गए। to see which slit, which window they went through. जैसे ही वो उसको ऑब्जर्व करने लगे, The moment they began to observe it, तरंगे ठोस पदार्थ बन गई। the waves became solid matter. ओके, पूरे दे। ओके, अब उन्होंने वहां कैमरा रखा। जब कैमरा रखा तो बिहेवियर चेंज कर दिया फोटॉन्स ने। अब वो तरंगों की तरह नहीं, अब वो ठोस पदार्थ की तरह उस खिड़की से अंदर जा रहे थे। When they put a camera there, the behavior of the waves changed. Now they went as solid matter. इसने फिजिसिस्ट के दिमाग को हिला दिया है। वो कह रहे हैं जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनको कैसे पता कि हम उनको देख रहे हैं। This has surprised the physicists. They are thinking, how do these subatomic particles know that we are observing them? नहीं आया समझ में? You didn't understand. अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहां पे सुमित को देखने लग जाऊं ध्यान से, तो उसका बिहेवियर वो थोड़ा अगर कोई आपको देखता रहे If someone keeps on looking तो at you, ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो सकता है। human behavior can change. मगर एक पार्टिकल को कैसे पता कि आप उसको देख रहे हो कि उसने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया? But how does a particle know that somebody is observing that it changes behavior? साइंस कैन नॉट आंसर इट। व्हाट इज दिस? ये क्या हो रहा है? विज्ञान के पास इसका उत्तर ही नहीं है. What is happening? और ये एक बार एक्सपेरिमेंट नहीं कहा गया, And this has not been done once. ये हजारों बार करा गया। दिस इज नॉट अ फिनोमिना। This was done thousands of times. ये फिनोमिना नहीं है, चाइना में हो रहा है, इंडिया में नहीं होगा। ये एक बार होने वाली घटना नहीं है. ये हर बार यही हुआ। Every time this happened. और ये कौन बता रहा है? ये वो, मैं फिर से कह रहा हूं, गली मोहल्ले के लोग नहीं है जिनको 2022 में नोबेल पीस प्राइज मिला, नोबेल प्राइज मिला है इस एक्सपेरिमेंट के लिए। उन्होंने ये बात बोली है। This is not lay people. This is people who won Nobel Prize. They are saying this. अब मैं आपको इसको समझाता हूं कि आप समझो। यानी जो भी मटेरियल है Whatever exists in material form, वो साउंड वेव में एग्जिस्ट करता है। it exists as sound waves. और अगर आप उसको ऑब्जर्व करते हो And if you start to observe it, तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। then whatever you are expecting starts to show in front of you as a result. ओके, Come on. ठीक है, अभी थोड़ा और आ जाएगा अभी समझ में। यानी जो आपका उत्तर है, Your answer, जो कुछ भी आप चाहते हो परमेश्वर करे, whatever you want God to do for you, वो ऑलरेडी आपके पास है तरंगों में। you already have it as waves. Your answer is spread across this room in the form of waves. आपका उत्तर इस कमरे में फैला हुआ है तरंगों के रूप में. All the kidneys, the hearts, the bones, they are already reverberating in this atmosphere in the form of सारी waves. किडनीज, हार्ट्स, लिवर्स, जो भी शरीर के अंग चाहिए इस वातावरण में तैर रहा है तरंगों के रूप में. All the breakthroughs that you need, everything that you need from God is already here in the form of waves. सारे छुटकारे जो कुछ आप परमेश्वर से चाहते हो कि वो आपके लिए करे, यहाँ पर अभी मौजूद है तरंगों के रूप में. But if you cannot see it, if you cannot observe it, you won't have it. लेकिन अगर आप उसको देखोगे नहीं, उसको ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको मिलेगा नहीं. जब तक साइंटिस्ट ने देखा नहीं वो तरंगे ही रही। Until the time the scientists did not observe, they remained as waves. जब देखने लगे तो ठोस बन गया। When they began to see it, it became solid matter. Now let me tell you what biblical faith is. अब मैं आपको बताता हूं बाइबल के अनुसार विश्वास करना क्या है. ओके, जेनेसिस में परमेश्वर ने पहले ऑब्जर्व किया, पृथ्वी कैसे बनाऊंगा मैं, पूरा क्रिएशन का। ही ऑब्जर्व्ड. In Genesis, God first saw in his heart, he observed in his heart how he'll make the whole earth. And then he spoke. और तब उसने बोला. Okay? He observed. उसने ऑब्जर्व किया अपने अंदर. Then he spoke. तब उसने बोला. The waves
जो तरंगे थी condensed वो इकट्ठा हुई and took the form of what he was observing, and we saw it became reality. और जो कुछ वो देख रहा था उसका रूप ले लिया और हकीकत बन गई। यानी जो मोल्ड है That means the mold is in your heart. वो आपके दिल के अंदर है, जो खांचा है उसका। The Bible says a good man out of his heart brings forth good things, and an evil man out of his heart brings forth evil things. एक भला मनुष्य अपने दिल के भले खजाने से भली वस्तुएं पैदा करता है, निकालता है, और एक बुरा मनुष्य अपने दिल के बुरे खजाने से बुरी वस्तुएं निकालता है। आप देख रहे हो अभी जो दिल्ली में हो रहा है, आप इस बिल्डिंग को देख रहे हो, इस कलीसिया को देख रहे हो, ये कैसे हुआ? हमने कोई भीख नहीं, मैं अपने कमरे में बैठ के वचन की घोषणा करता था और उसके बाद देखता था ऐसा स्टेज होगा, ऐसे लोग बैठे होंगे, और उसके बाद घोषणा करता था that the answer that was in the sound form condensed and became the church. What you are seeing today happening here, this church, I did not beg, but in my room I would observe, I would see this is how it will be, and then I made declarations as per the word of God, and this is how the church has come out to be. पड़ोसी को बोलो, भीख नहीं मांगनी, Tell your neighbor, do not beg. सीखना है विश्वास कैसे कार्य करता है। Learn how faith works. क्यों? एक ही चीज है बाइबल कहती है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। There's only one thing by which God is pleased, the Bible says. क्या है वो चीज? What is it? विश्वास। जानते हैं Faith. क्यों? You know why? क्योंकि विश्वास आपको वैसे ही कार्य कराता है जैसे परमेश्वर है। Because faith makes you operate the way God operates. Okay? So, a quantum physicist said, एक क्वांटम फिजिसिस्ट ने कहा, whatever you're expecting जो कुछ आप उम्मीद कर रहे हो is already present in ध्यान से सुनना कितना, 100 billion possibilities. जो कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो 100 बिलियन तरहों से पहले से ही मौजूद है। 100 बिलियन तरहों से प्रकट हो सकता है, उसकी संभवताएं, इट कैन बी मैनिफेस्टेड इन, मगर प्रकट तभी होगा जब तुम विश्वास की आंखों से पहले देख लोगे, तब वो प्रकट होगा। but it will manifest when you will first see it with the eyes of faith, then only will it manifest. Your healing is already here. Your आपकी deliverance चंगाई is already पहले से here. है। आपका छुटकारा यही है अभी। Bible says you've been healed by the stripes of Jesus. बाइबल कहती है यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। That scripture is already reverberating वो शब्द, वो वचन यहीं पर पहले से मंडरा रहा है, in the form of waves, तरंगों के रूप में, waiting for one person to catch it and to see by the eyes of faith that I am healed by the stripes of Jesus. इंतजार कर रहा है कि एक व्यक्ति हो जो मुझे देख ले, विश्वास की आंखों से मुझे देखकर पकड़ ले कि मैं पहले से यीशु के कोड़े खाने से चंगा हूं। Okay? मुश्किल तो नहीं है। प्रार्थना रिलीजियस डिसिप्लिन नहीं है। Prayer is not religious discipline. Prayer is the medium through which the visible world and invisible world interact and exchange things. प्रार्थना वो माध्यम है जिसके द्वारा अदृश्य दुनिया और दिखाई देने वाली दुनिया आपस में बात करते हैं और आदान प्रदान करते हैं चीजों का। See, because we have become religious, क्योंकि when we pray, we don't expect anything. Because what we are doing, we are thinking, I have to pray 1 hour. That's what we expect. But we don't expect the answer. क्योंकि हम धार्मिक बन गए, इसीलिए जब प्रार्थना करते हैं तो कुछ होगा इसकी उम्मीद नहीं है। हमारी उम्मीद है कि 1 घंटा प्रार्थना करना है, क्योंकि वो ही करने के लिए बैठे। क्यों करना है प्रार्थना? क्योंकि अच्छा है प्रार्थना। इट्स अ गुड थिंग टू प्रे। प्रार्थना करो। क्यों करो? प्रे। व्हाई? No. We pray with a mandate. There is a revelation behind why we pray. हम एक मकसद के साथ, एक प्रकाशन के द्वारा प्रार्थना करते हैं। कारण है कि हम प्रार्थना करते हैं। That means every time you pray, you expect that God will move. इसका मतलब जब भी आप प्रार्थना करते हो, उम्मीद करो कि परमेश्वर काम करेगा। Okay? Put Mark 11:24. मरकुस 11:24। I pray that you get it today. मैं प्रार्थना करता हूं कि आप पकड़ें आज इस बात को। Okay? So,
See, what did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, believe that you receive them तो प्रतिति कर लो कि तुम्हें मिल गया है, and you will have them. और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम्हें अब मिल ध्यान से जाएगा। सुनो. Religion says धर्म कहता है one day God will give you. एक दिन परमेश्वर तुम्हें देगा। Jesus says यीशु कह रहे हैं believe when you pray you have received it. जब प्रार्थना कर रहे हो तो तभी मान लो कि तुम्हें मिल चुका है। You're not getting it. Jesus doesn't say what religion says. यीशु वो नहीं कहते जो धर्म कहता है। Religion says धर्म कहता है one day God will give you. एक दिन परमेश्वर तुम्हें देगा। Jesus says यीशु कह रहे हैं when you pray जब तुमने प्रार्थना किया believe that you have received it. मान लो कि तुम्हें मिल गया है। Okay. Now question comes, सवाल ये उठता है how can I believe I have received something when I have not seen the answer? मैं कैसे मान लूं कि मुझे मिल गया है जब मैंने उसका उत्तर देखा नहीं है अभी। कई लोग इस बात को नहीं समझते. Many people don't So वो क्या understand. करते हैं? So what they do? वो कहते हैं हाँ मैं बिलीव कर रहा हूं, मैं चंगा हो गया हूं. Yes, फिर I अपने believe बॉडी को I'm चेक healed. करते हैं. Then they check their bodies वो कहते हैं नहीं हुआ. and they say no, I'm not healed. यहां पे दो चीजें हैं. There are two things here. Believe you receive them, मान लो कि तुम्हें मिल गया है then you will have them. और तब तुम्हें मिल जाएगा। Receiving happens in the unseen realm. ग्रहण करना अदृश्य दुनिया में होता है पहले। When you receive your answer, जब आप अपना उत्तर ग्रहण करते you हो have no physical evidence that you have got the answer. तो कोई शारीरिक सबूत नहीं कि उत्तर मिल गया। समझ आया? यू अंडरस्टैंड? पहले जब विश्वास कर लोगे कि मिल गया, जब अनदेखे में मिल गया तो देखे में प्रकट हो जाएगा. When you will first believe that you've got it, that which is in the invisible will show up in the physical. मगर अगर पहले ये विश्वास नहीं किया कि मिल गया तो आप वेट करते हो, एक दिन प्रभु देगा. और प्रभु कह रहा है कब तू विश्वास करेगा. But if you do not believe in the invisible, that you have already got it in the invisible, you will keep on waiting. One day God will give and God will keep on waiting. When will you believe? आपने आज गवाही देखी, उस बहन ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट पे लिख दिया. You saw the testimony that sister जब wrote on her थायराइड report. पूरा 9 था When her thyroid तब was लिख दिया, 9, she मैं wrote, टाइम स्टैम्प कर दिया, मैं चंगी हो चुकी हूं. she time stamped that I am healed on this day and this time. Believing happens in the unseen realm. मानना अदृश्य दुनिया में होता है. लोग रिसीव करने को और उसके मैनिफेस्टेशन का अंतर नहीं समझते. तो लोग क्या प्रार्थना करी, कहा अभी तक तो हुआ नहीं, परमेश्वर ने तो कुछ करा नहीं. People don't understand the difference between receiving in your heart, receiving inside, and its answer coming up on the And outside. that's why what do they do? They keep begging, they keep begging, they keep begging, वो भीख but they मांगते don't रहते हैं, believe. भीख मांगते रहते हैं, लेकिन मानते नहीं है. See, we have taught people to pray, 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 but we have not taught them how to believe. हमने लोगों को ये तो सिखाया कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, लेकिन ये नहीं सिखाया कि कैसे मानना है. Because Jesus didn't just say pray and you will have it. He said pray and then he's giving us the secret. You pray and you believe that you've received it and then you will have it. यीशु ने सिर्फ ये नहीं कहा प्रार्थना करो, उसने कहा जब प्रार्थना करते हो तो ये मान लो कि तुम्हें मिल चुका है और तब तुम्हें मिल जाएगा. Okay? समझ रहे हैं आप लोग? So अब क्वेश्चन ये आता है, But the question comes, बिलीविंग करते कैसे हैं? how do we believe? अब hear this. सुनिए, What quantum physics says observation, believe is what Bible says. जिसको क्वांटम फिजिक्स ऑब्जर्वेशन कहती है उसको बाइबल बिलीविंग करना या मानना कहती है. That means आप अपने हृदय की आंखों से उस चीज को देखते हो जो अभी तक आपके ज्ञानेंद्रियों ने नहीं देखी, आपकी आंखों ने नहीं देखी, मगर आप अपने हृदय की आंखों से जब आप प्रार्थना करते हो, बोलो जब मैं प्रार्थना करता हूं, बाद में नहीं, पहले नहीं, जब मैं प्रार्थना करता हूं. So it means through the eyes of your heart you start to observe, you start to see what you are praying for when you are praying, not after, not before, but when you are praying you start seeing it. यानी अगर एक बहन है जो कंसीव नहीं कर सकती, That means if there's a sister who cannot conceive, डॉक्टर ने कहा इम्पॉसिबल है, doctors have said it's impossible.
ओके आपकी फेलोपियन ट्यूब खराब है, आपकी ओवरी खराब है, जो भी, Whatever they said, your fallopian tube is not working, your ovaries are not. मगर आप वहां जा सकते हो जहां से फेलोपियन ट्यूब आई, जहां से ओवरी आई. But you can go to the source from where the fallopian tube or the ovary came from. ओके सो इस वचन के अनुसार According to this वो word, बहन प्रार्थना करती है, this sister prays, प्रभु Lord, यीशु के नाम में in the name of Jesus, मैं तेरे वचन पे खड़ी होती हूँ, I- मैं विश्वास करती हूँ. I stand on your word and I believe. ये प्रार्थना कर रही है. She's praying this. अब बिलीव कैसे करेगी? Now how is she going to believe? She'll start to observe her baby. वो अपने बच्चे को देखने लगती She'll है. start to observe that I am pregnant. वो देख रही है कि वो गर्भ से है. Let me tell you, okay. Is it ठीक है अगर थोड़ा आज टीचिंग में जाएंगे? मुझे पता है आज अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस है, मगर प्रभु ने मेरे हार्ट में डाला कि बहुत जरूरी है. द चर्च नीड्स टीचिंग. God put this in my heart, बहुत महत्वपूर्ण है. चर्च को टीचिंग चाहिए. See, you have to understand that God is a spirit. आपको समझना है कि परमेश्वर एक आत्मा है. And in the beginning, He made heavens. और- That's the unseen realm. शुरुआत में उसने स्वर्गों को जो कि अदृश्य है उसको बनाया. And He made the earth. That is the seen realm. और उसने पृथ्वी को जो दिखाई देने वाली दुनिया है उसको बनाया. And the unseen realm is the parent force. और जो अदृश्य दुनिया है वो पैदा करने का स्रोत है उसके लिए. When you are praying, जब आप प्रार्थना कर रहे you हो, are connecting to the unseen realm. That's the parent force that starts to influence the seen realm. आप उस अदृश्य दुनिया को प्रभावित कर रहे हो जिसके द्वारा दिखाई देने वाली दुनिया प्रभावित होती है. Okay? And when the unseen realm manifests, और जब वो अदृश्य दुनिया प्रकट होने लगती है, the unseen realm does not abide by the laws of physics. अदृश्य दुनिया फिजिक्स के नियमों से काम नहीं करती. That's why when you get the answer, we call them miracles. इसीलिए जब आपको जवाब मिलता है तो उसको आप चमत्कार कहते हो. Because it did not come from the natural world. क्योंकि वो दिखाई देने वाली दुनिया से नहीं मिला. Okay? So, मैं आपको सरल तरीका बताता हूं I'll tell you in easier way. कि कैसे. अच्छा ये कौन बोल रहा है? सबसे पहले ये बात बताओ. Firstly, who is saying this? ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बोल रहा है. This is not a motivational speaker saying This is the word of the Lord. ये परमेश्वर का This is वचन Lord है. Jesus Christ. प्रभु यीशु नासरी. And He said, और उसने कहा whatever. जो कुछ. जब परमेश्वर ने बोला, When God everything that you need is already there. You don't need to convince Him now. जो कुछ आपको चाहिए वो पहले से है. अब आपको परमेश्वर को मनाने की जरूरत नहीं है. His creative ability is reverberating all around the universe. उसकी सृष्टि करने की रचना पूरी सृष्टि में मंडरा रही है. Let me explain so that आपको एक और उदाहरण देता हूं. In Genesis 12, God tells Abraham, I'll make your father of nations. उत्पत्ति 12 में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं तुझे देशों का पिता बनाता हूं. Nations will come out of you. देश तुझ में से उत्पन्न होंगे. Abraham said, Amen. अब्राहम ने कहा आमेन. Like many people say Amen. जैसे बहुत से लोग कहते हैं आमेन. But he had no idea what it meant. और उसको कोई अंदाजा नहीं था कि इसका मतलब क्या होता है. He was 75 at that time. वो 75 वर्ष का था उस समय. Now, अब Genesis 15. उत्पत्ति 15 हुआ. Look at his prayer. उसकी प्रार्थना देखो. Your prayer will tell you whether you have believed or not. आपकी प्रार्थना आपको बताएगी कि आपने मान लिया या नहीं. Genesis 12 में परमेश्वर ने इब्राहिम को क्या बोला? What did God say to Abraham? Nations will come out of you. तुझ में से देश उत्पन्न होंगे. Genesis 15 में इब्राहिम की प्रार्थना सुनो. Hear his prayer in Genesis 15. God, परमेश्वर, what will you give me? तू मुझे क्या देगा? Seeing I am childless. ये देखते हुए कि मैं निसंतान हूं. Okay? क्या प्रार्थना कर रहा है इब्राहिम? What was Abraham praying? जेनेसिस 15 में परमेश्वर मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? Seeing God, what will you give me? Seeing I'm childless. But God was saying, hey Abraham, that's not what I am seeing. परमेश्वर तो मुझे क्या देगा ये देखते हुए कि मैं निसंतान हूं. लेकिन परमेश्वर कह रहा था अब्राहम मैं तो ये नहीं देख रहा.
God was not seeing what Abraham was seeing. परमेश्वर वो नहीं देख रहा था जो अब्राहम देख रहा था। God was seeing a father of many nations. Abraham was seeing that I am childless. परमेश्वर देख रहा था कई देशों का, कई जातियों का पिता। अब्राहम देख रहा था एक निसंतान व्यक्ति। So believe करना ये नहीं, amen, हाँ जी, amen. ये believe करना नहीं होता भैया. So believing is not saying yes, yes, amen, amen. Until you can see the answer and get convinced in the core of your heart, that's what biblical believing is. जब तक आप उत्तर को देख ना लो, अपने दिल की गहराई से उसके लिए आश्वस्त ना हो जाओ, ये है बाइबल के अनुसार मानना। So परमेश्वर को पता लग गया, So God got to know इसकी पिक्चर खराब है अंदर की. his image is still corrupt. So I will teach him how faith operates. मैं उसको सिखाऊंगा विश्वास कैसे काम करता है। Because I am seeing a father of many nations क्योंकि- and he's seeing a childless man. क्योंकि मैं तो देख रहा हूं जातियों जातियों के पिता को, और ये देख रहा है एक निसंतान पुरुष को। So God said, I परमेश्वर ने कहा, have to show him something. परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूं। Abraham, अब्राहम, come out of your tent. अपने तंबू से बाहर आ जरा, Look at the stars. तारों को देख, Can you count them? क्या तू इन्हें गिन सकता है? So shall your descendants be, ऐसे Abraham. ही तेरे वंशज भी And होंगे। first time Bible says in Genesis 15, and Abraham believed. और पहली बार बाइबल कहती है उत्पत्ति 15 में, और अब्राहम ने विश्वास किया। How did Abraham believe? अब्राहम ने कैसे विश्वास किया? When he saw. जब उसने देख लिया। Okay? If you don't know what your answer looks like, you have not believed. अगर आपको नहीं पता कि आपका उत्तर कैसा दिखाई देता है, तो अभी तक आपने विश्वास नहीं किया। Some माना नहीं people है। pray vague prayers. कुछ लोग फजूल की प्रार्थना करते हैं। God bless me. प्रभु ने ब्लेस करो। What does that look like? What does कैसा God दिखता है? bless me mean? परमेश्वर मुझे ब्लेस करे, ये कैसा दिखता है? कोई 2 केले दे दे आपको, you are blessed. Someone gives you 2 bananas, are you blessed? What does, we are praying vague prayers. हम व्यर्थ की Faith प्रार्थना is करते हैं। definitive. विश्वास निश्चित है। Are you getting what I'm saying? Jesus said, whoever says to this mountain, Jesus asked people, what do you want that I should do for you? यीशु ने कहा जो कोई भी इस पहाड़ से कहे, यीशु ने लोगों से पूछा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, क्या चाहते हो तुम? Faith is definitive. विश्वास निश्चित है। तुक्के नहीं मारना है। हाँ देखो देखो हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा, नहीं It's होना not guesswork or see it'll happen whether it happens or not. है। God gave Abraham a picture, परमेश्वर ने अब्राहम को एक तस्वीर दी, and it was not a quick sneak peek. He observed. He would have counted the stars. 1, 2, 3, 4, 5. और वो झलक ऐसी नहीं थी एक पल की, उसने गिनने की कोशिश भी की होगी। He had a picture. उसके अंदर एक तस्वीर थी। ध्यान से सुनो अब, Hear carefully. okay? उसके अंदर he had a picture. उसके अंदर एक तस्वीर थी। उसके अंदर तस्वीर थी। क्या थी उसके अंदर तस्वीर? What was the picture inside? Come on, talk to me church. क्या थी उसके अंदर तस्वीर? कि मैं क्या हूं? मैं निसंतान हूं। परमेश्वर ने उसको एक तस्वीर दी। क्या थी वो तस्वीर? कि तू जातियों का पिता होगा। He had a picture inside that he was childless, but God gave him a picture that you will be a father of nations. God's word carries pictures. परमेश्वर के शब्दों में, उसके वचन में तस्वीरें हैं। And when you receive God's word, और जब आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते it हो, swallows the negative pictures of our heart. वो आपके दिल की नकारात्मक तस्वीरों को खा जाता है। कई लोग हालेलुया हालेलुया दे 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 हालेलुया हालेलुया दे 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 दे। हालेलुया हालेलुया गिव मी। प्रभु कह रहा है भाई क्या दे दे? God is saying what do you want, what should I give you? प्रभु चंगा कर दे। Oh, heal What me, does Lord. healing look like? चंगाई कैसी दिखाई देती है आपको? मैं एक बहन को मिला जो बिस्तर में थी, बेड रिडन। I met a sister who was on her bed of sickness. ऐसे बहन तू विश्वास करती है कि यीशु के कोड़े खाने से तू चंगी हो चुकी है? हाँ हाँ पास्टर जी मैं विश्वास I करती said, sister, do you believe you are healed by the stripes of Jesus? Yes, yes, pastor, I believe, I believe. हूँ। मैंने उनसे पूछा कैसी दिखाई देती है चंगाई? I asked her, what does it look like to you that you're healed? कह रही मतलब? She said, what do you mean? मैंने कहा कैसे दिखाई देती है चंगाई? I asked her, what does it look like that you're healed?
नहीं समझ में आया। She didn't understand. मैंने कहा अगर तुम चंगी हो गई बहन तो क्या कर पाओगी जो अभी नहीं कर सकती? I said, if you are healed, sister, what will you be able to do that you cannot do right now? फूट फूट के रोने लगी। She started to weep. बोली मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाऊंगी, She said, I'll go drop मैं my kids मार्केट to school. जाऊंगी दोबारा, जो मार्केट जाती थी I'll go to the market again as I मैं used to खुद go. चलूंगी फिरूंगी। I'll walk on my own. तो as I मैंने used to. कहा ये देखना शुरू कर अभी, पहले वो विश्वास है। I said, start seeing it now. That is faith. Faith sees the invisible before it's manifest in the visible. विश्वास अदृश्य को देख लेता है जब वो शारीरिक रूप में नजर नहीं आया तब भी। Because the answer is already there in the waveform. क्योंकि उत्तर पहले से तरंगों के रूप में मौजूद है। Okay? कैसे waveform में? कैसे Because तरंग? God said, क्योंकि परमेश्वर ने बोला, by His stripes you कोड़े खाने are healed. That word is alive. What does alive mean? It beats. It's vibrating. It's still there. It's उसके there. कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। ये वचन अभी भी जिंदा है, अभी भी तरंगों में है। ओके आप समझ रहे हैं? कई लोग कहते हैं मेरे कहते रहने से हो जाएगा। मैं कहूंगा बार बार यीशु गुड़ खाने से मैं चंगा हूं, यीशु गुड़। कई लोग कहते हैं मैंने तो इतनी बार कहा, मेरे साथ तो हुआ नहीं। Some people think they'll keep on saying and it'll happen, and then they say, I said it so many times, it didn't happen for me. अरे मंत्र नहीं है भैया It's not a mantra. कि 1 लाख बार जब दिया तो हो जाएगा। If you say it 1 lakh times, it'll happen. फेथ ओके खोलो 2 Corinthians 4:13। दूसरा कुरिन्थियों 4:13। ओके लेट्स सी हाउ फेथ ऑपरेट्स। हम देखते हैं विश्वास कैसे काम करता कब बोलना है, बोलने से पहले कुछ करना है। अपने पड़ोसी को बोलो बोलने से पहले कुछ करना है। है। Tell your neighbor you have to do something before you start speaking. Okay, some people are aimlessly speaking and they don't see the answer. कुछ लोग बिना एम के बोले जा रहे हैं और उत्तर नहीं देख रहे हैं। And since we have the same spirit of faith, according to what it is written, say this after me. I believed, and therefore I spoke. और इसलिए कि हमने वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है। मेरे साथ कहें कि मैंने विश्वास किया, इसलिए मैं बोला। ध्यान से सुनो। ये क्या? Your words reveal what you believe. आपके वचन दर्शाते हैं कि आप क्या मानते हो। आपके वचन, आपके शब्द बताते हैं कि आप क्या मानते हो। I believed, therefore I spoke. Your words release what you believe. मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। हाँ देखते हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा। Yeah, let's see what happens. I don't know it'll happen or not. That's what you believe. तो फिर आप यही मानते हो। परमेश्वर का वचन कहता है जो व्यक्ति शक करता है वो समुद्र की लहरों की तरह है, जो अभी यहां और अभी वहां, उसे परमेश्वर से थोड़ा मिलेगा। बाइबल कहती है कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो। Bible says the man who doubts is like the waves of the sea here and there, will get nothing from God. And what does doubt look like? संदेह कैसा The दिखता है? picture in your heart is not perfected. कि आपके अंदर जो तस्वीर है दिल में वो भी सिद्ध नहीं हुई, पूरी नहीं हुई। So we meditate the word तो हम day and वचन पे night. मनन करते हैं दिन और This रात। book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day. Why? The meditation of God's word creates the picture that the word has for me. व्यवस्था की ये पुस्तक तुम्हारे चित्त से ना उतरने पाए। क्यों? क्योंकि जब उसके वचन पर हम मनन करते हैं तो वो हमारे दिल में तस्वीरों को पैदा करता है, उसको उत्पन्न करता है। Amen? So केवल प्रार्थना नहीं करना, Don't just जब pray. प्रार्थना करो तब विश्वास करना है। Don't just pray, but when you pray, believe then. When you are praying, you are putting observer's effect, double slit experiment भाई। जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो आप ऑब्जर्वर्स इफेक्ट को ला रहे हो, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। कैसे? How? जो चंगाई वचन में है, अभी चंगाई कहां है? बोलो चंगाई कहां है? The healing that is in the word. मैंने पिछले संडे बोला था फास्ट करके आना, मुझे लग रहा है ज्यादा फास्ट कर दिया लग। हाँ क्या हुआ? हो यहीं पे? Are you here? चंगाई कहां है? Where is the word? Where is the healing? वचन कौन सी स्टेट में, कैसे होता है वचन? बोलो तरंगों में। It is in the waves form. ठीक है, फिर से चंगाई कहां है? Where is healing? वचन में।
In the word. वचन कैसी फॉर्म में है? How is the word? तरंगों In में। the waves. मगर जब आप उसको ऑब्जर्व करने लगोगे तो तरंगे पदार्थ बन जाएगी भैया। But when you start to observe it, the waves will take a solid matter shape. That's what quantum physics is now telling us. ये है जो क्वांटम फिजिक्स हमें बता रही है ये अभी। यीशु ने बता दिया था 2000 साल पहले। This is what Jesus said 2000 years ago. When you pray, जब तुम प्रार्थना you करो, believe. So what is मानो। believe? मानना क्या है? What is believing? क्या है मानना? मानते हो? हाँ जी हम तो मानते You हैं। believe? Yeah, I believe, I believe. You believe that you believe, तुम मानते हो कि तुम मानते हो, but you don't believe पर तुम मानते नहीं हो until you can see it. जब तक देखते नहीं हो। Believing is seeing with your heart before you can see it with your eyes. मानना है अपने दिल से देखना जब तक अपनी आंखों से नहीं देख सकते। Let me say it. Biblical believing is seeing the answer with your heart before you see it with your eyes. बाइबल के अनुसार मानना अपने दिल की आंखों से देखना है जब तक शारीरिक आंखों से नहीं दिखता। जब हम लोग राजा गार्डन में 20 लोग थे, मैंने आपको बताया, when we were- सबने पैसा इकट्ठा किया, 1500 रुपए की एक नीली कारपेट खरीदी। When we were 20 people in Raja Garden, we gathered money and bought a blue carpet. मेरी आंखें कितना लोग बोल रही थी? What were my eyes saying? 20। I had 20 people there, मगर मैं वो नहीं देख रहा था। but I was not seeing that. जब मैं आंखें बंद करता When my eyes था would तो मैं be shut, हजारों की भीड़ देखता था। I would see thousands मैं upon प्रभु thousands को of people. धन्यवाद करता था। I would thank God. पौलुस कहता है हम आंख ही देखे चीजों के पीछे नहीं चलते हैं। Paul says we don't go after things that are visible from the sight. We don't walk by sight. हम आंखों के द्वारा नहीं देखकर चलते। आंखें आपको नहीं बता सकती कि आपको उत्तर मिलेगा या नहीं Your मिलेगा। eyes will not tell you whether you हम get कैसे the answer or कहते हैं, ओ not. हालेलुया हालेलुया प्रभु ठीक You है। say, hallelujah, hallelujah. अरे God अभी तो नहीं हुआ रे। Oh, it's still not healed. अरे पहले अंदर देखना पड़ेगा अपने First- आप को चंगा होते हुए, फिर ये आंखें भी देखेंगी। First, you'll have to see it in your heart being healed. Then these eyes will also see it. Hallelujah. You have to see it with your heart. अपनी दिल की आंखों से आपको देखना है पहले। And that's how Abraham became the father of faith, because he understood. और ऐसे ही अब्राहम विश्वास का पिता बना क्योंकि वो समझ गया था। Observation, बोलो observation affects material reality. जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो तो उससे ठोस पदार्थ पर असर पड़ता है। इसीलिए जेकब जब उसका ससुर उसके साथ गलत कर रहा था, उसने क्या किया, भेड़ बकरी के सामने छिल के वो टहनियां रख दी। जब भेड़ों ने वो देखा उन टहनियों को, मेरे पास टाइम नहीं है वहां जाने का, बट क्या हुआ, बच्चे वैसे होने लगे भाई। योर ऑब्जर्वेशन कैन अफेक्ट द अपीयरेंस ऑफ योर बेबी। आपने देखा है लोग क्या करते हैं, क्यूट बच्चे की फोटो रखते हैं, देखा है? People keep What is pictures of that? cute babies. That is not superstition, that's वो वहम science. नहीं है, वो साइंस है। एक बच्चा आया, एक लड़का आया चर्च में, और guy came वो to the बिल्कुल church. फैमिली से अलग लगता है। He looks very different from his family. मैंने कहा भाई ये तू इतना सुंदर कैसे है? I asked him how you. मैं उससे कह रहा मेरी मम्मी ने ऐश्वर्या राय की फोटो लगा रखी थी उसमें। He said my mom had Aishwarya Rai's picture in her phone. It's biblical. ये बिब्लिकल है। अगर अच्छा देखोगे, यीशु मसीह ने कहा आंखें, वो इन आंखों की बात नहीं कर रहा, ये आंखें शरीर का दिया है। अगर ये आंखें अच्छी हैं तो पूरा शरीर ज्योति से भरा है। If you will see good, he is not talking about these eyes. He is talking about these eyes. All your body will be good if you see good from the eyes of your अगर ये heart. आंखें खराब हैं तो पूरा शरीर अंधकार से भरा है। If these eyes are dark, the whole body is filled with darkness. हाँ, कुछ लोगों के पास एक गिफ्ट होता है, Some people have a gift. वो हर एक अच्छी चीज में कुछ ना कुछ नुस्ख निकालते हैं। They can find fault in every good thing. वो अच्छा नहीं दिखता कुछ भी। They don't see anything good. शादी में जाएंगे, They go to a wedding. पनीर रबड़ जैसी है, Oh, the paneer is like चावल rubber. टाइट थे, चावल was- गुलाब जामुन ठंडे थे। The sweet is not good. और कुछ लोग बुरी some परिस्थिति में भी अच्छा देख सकते हैं। Some people can see good. even विश्वास in a के लोग, worse situation. जब सब लोग पराजय को देख रहे हैं, विश्वास के लोग तब भी जय को देखते हैं। When everyone is seeing defeat, the people of faith will see victory in it. Okay? Why did Israelites
perish in wilderness? क्यों इजरायली लोग मरुस्थल में नाश हुए? Because of their observation. अपने खुद के देखने के कारण। Because they saw these giants. उन्होंने दानवों को देखा और रोने लगे। We can never go and possess this land. हम कभी भी इन देशों पे कब्जा नहीं कर पाएंगे। Observe किया, देखा, मुंह से बोला, spoke from the वेव mouth, कंडेंस हो गई, वहीं मर गए। तरंगे, the waves got condensed and they died there in the wilderness. क्या परमेश्वर ने उनको आने से मना किया? नहीं, Did वो God लोग stop them? अपने उन्होंने डिसाइड किया है। No, they decided on their own. मगर वहीं पे दो लोग थे, But there were two people. उन्होंने उन्हीं जायंट्स को देखा। They saw the same giants. बाइबल कहती है उनमें एक अलग आत्मा था, Bible says they had a different spirit. उनमें विश्वास का They आत्मा था। had the spirit of faith. उन्होंने उन दानवों को देखा, They saw the giants. अरे क्या है ये दानव, ये तो हमारे नाश्ते के लिए, ये तो हमारा सांबर है, एकदम एकदम And they said, डोसा। what are these? What are these giants? They shall be like उन्होंने breakfast. कहा हम अब भी जाएंगे और इस लैंड को पोजेस कर लेंगे। They said, we will go now and possess the land. जो पॉसिबिलिटी इन 10 ने डिक्लेयर करी, उनके साथ वही पॉसिबिलिटी हुई। जो इन 2 ने डिक्लेयर करी, उनके साथ वही पॉसिबिलिटी हुई। The possibility that these 10 declared happened to these 10, and the possibility that these 2 declared happened to these 2. अब जानते, कई लोग सोचते हैं अजी सब तो लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे सब। You know, नहीं, some people think everything is written that's already. not what Bible forwarded. teaches. Bible ऐसा नहीं सिखाती है। God has given you choice. He says, I set before you life and death. परमेश्वर आपको चुनने के लिए देता है। वो कहता है मैंने जीवन और मृत्यु तेरे सामने रखी है। Where you are today आज जहां आप हो, is because of the choices you have made years before. उन चॉइसेस के कारण है जो आपने सालों पहले दिए And थे। where your life is going because of the choices that you are making today. और आपकी जिंदगी जहां जा रही है वो उन चुनावों, उन चॉइसेस के कारण है जो आज आप ले रहे हो। So choose His word because there is life in His तो word. उसके वचन को चुन लो क्योंकि उसके वचन में जीवन है। Okay? उन्होंने डिसाइड। So in front of you there are 100 billion possibilities where your life can go. आपके सामने 100 बिलियन संभावनाएं हैं आपकी जिंदगी कहां जा सकती है। It will happen according to what you observe and what you say. पर वो होगा उसके अनुसार जो आप ऑब्जर्व करते हो, देखते हो और कहते हो। Okay? कुछ सीख रहे हैं हम? See, we have become excellent in the praying part. हम प्रार्थना करने में तो एक्सीलेंट बन गए, We don't understand how to believe. लेकिन ये नहीं पता कि मानना कैसे है। That's why there are people praying for 30 years. They've not gotten the answer and they don't know why. So they think God is not convinced. So I have to do more. इसीलिए लोग 30 साल से प्रार्थना कर रहे हैं और उत्तर अभी तक नहीं मिला, तो उनको लगता है कि परमेश्वर अभी तक नहीं माना है, तो मुझे और करना होगा और करना पड़ेगा कि किसी तरह से वो मान जाए। अच्छा 21 दिन के उपवास से नहीं माना, अब 40 दिन उपवास करूंगा। अच्छा तब भी नहीं माना, और करूंगा और they are not understanding. It's not God who is the problem. It's their heart, because their heart doesn't believe the word. So they say, oh, God is not convinced by 21 days fasting. Let me fast for 40 days. Then still not convinced. Let me fast more. They don't understand. It's not God. उनका दिल है जो उस बात को अभी तक विश्वास नहीं किया, माना नहीं है। There was one more experiment, and all these are documented. Okay, you एक और can do एक्सपेरिमेंट it. है, आप देख सकते हैं जाके। एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है डॉक्टर मसारू इमोटो। डॉक्टर मसारू इमोटो। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि जब पानी के ऊपर वर्ड्स रिलीज करे गए, He released words over water. it changed their molecular, it changed their when they crystallized it changed their the crystalline shape. जब उसको क्रिस्टलाइज किया गया तो जो शेप उन्होंने उस पानी ने बनाया वो बदल गई शब्दों के कारण। जब देखो थैंक यू बोला तो ऐसा शेप बन गया। When they said thank you, this is how the shape जब was. विजडम ट्रूथ, जब ये बातें बोली गई, जब बोला गया यू फूल, यू मेक मी सिक, इविल, यू कैन सी कि जो पानी गंदा था प्रार्थना से पहले, प्रार्थना के बाद उसके क्रिस्टलाइन फॉर्म चेंज हो गया। You can see the water before and after prayer, the crystallized form changed. अब ध्यान से सुनो मेरी बात। Now hear carefully. अगर आपके शब्दों से If by your words पानी के अंदर चेंज हो सकता है, water can be changed like that, योर बॉडी इज 70% वाटर। आपका शरीर 70% पानी है। योर बॉडी इज 70% वाटर।
आपका शरीर 70% पानी है। Most people are sick because of their sick words. अधिकतर लोग बीमार हैं अपने बीमार शब्दों के कारण। Now let me also tell you one thing. एक और बात बता दूं, You know, it's very important that we have to help, do charity, help the poor. अच्छा है चैरिटी करना, गरीबों की मदद करना। Hear carefully. ध्यान से सुनो, But poverty can never be removed through hands. गरीबी कभी भी हाथों के द्वारा नहीं मिटाई जा सकती। मैंने आपको बताया ना, हम तुगलकाबाद गए, I told you into तुगलकाबाद, वहां स्लम एरिया था, in the slum area. सबने पैसे इकट्ठा किए, We gathered money, हमने उन बच्चों के लिए चप्पल खरीदी जो नंगे पैर थे। bought slippers for the kids. अगले दिन next जब day, अगले हफ्ते गए, सारी चप्पल गायब, उन्होंने चप्पल बेच दी, फिर डाइल्यूटर सूंघ रहे हैं। next week we went there, the kids had sold the slippers, they were sniffing diluter again. हम लोग सर्दियों में सारी कंबल लेके देते थे, हम जिस दुकान में गए कह रहा सर मत आया करो, जो कंबल आप बेचते हो अगले दिन वो आके हमें आधे रेट में बेच के चल जाते। सो गरीबी कभी हाथों से नहीं मिटाई जा सकती, गरीबी पहले यहां से मिटती है, जब यहां से मिटती है तो हाथों से भी मिट जाती है। Poverty can never be eradicated by hands. First poverty is eradicated here. Once it's gone from here, it will be gone from outside. इसीलिए यीशु मसीह ने जेरूसलम में नोटों की गड्डियां नहीं बांटी, उसने सुसमाचार प्रचार किया गरीबों को। उसने कहा गरीबों के लिए सुसमाचार है। So Jesus did not distribute money in the streets of Jerusalem. He preached the gospel. He said the gospel is for the poor. Because gospel changes our minds. क्योंकि सुसमाचार Gospel changes our hearts. हमारे मनों को, हमारे दिलों को बदलता है। Amen. मैंने आपको बताया जब मैं कर्जों में था, When I was in debts, बैंक वाले कॉल करते थे, bank people would call us. आपको बताया मैं छत में जाके रोता था, I would go to the roof and cry. घुटनों में नाक रगड़ रगड़ के प्रार्थना करता था, On my knees, I would rub my nose on the floor and pray. प्रभु तू कब मुझे छुटकारा दे, Lord, when will you deliver me? कब तक मेरे परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। Till when will my family suffer shame? कुछ चेंज नहीं होता But nothing was changing. जब तक परमेश्वर के वचन से मैंने अपने अंदर की इमेज को बदला नहीं। Until I changed the image inside with the word of God. पहले गरीबी यहां से आउट हुई, उसके बाद लाइफ से आउट हुई। First poverty left from here, then poverty left from my life. पहले दिल से आउट होगी, फिर हाथों और जेबों से भी आउट होगी। First it will leave your heart, and then it will leave your pockets and your hands. Are you getting what I'm saying? That's why Bible says इसलिए बाइबल कहती है that you will prosper as your soul prospers. कि तुम समृद्ध होगे जैसे तुम्हारा प्राण उन्नति करता है। Do you know, अमीला ये इतना प्रूवन है, अभी लॉटरी मिली किसी बंदे को, इवन आपने केबीसी में देखा होगा एक व्यक्ति जिसको 5 करोड़ मिले, वो उसके लिए कर्ज हो गया क्योंकि उसका बीवी से डिवोर्स हो गया, आज वापस कर्जों में आ गया। This is proven. A man who won a lottery, a guy who won 5 crores in KBC, he got divorced from his wife and is again in debts today. परमेश्वर पहले हमारे हृदय को बदलना चाहता है। God wants to transform our hearts first. Okay? So church, it's faith is not an option. Faith is necessity in the kingdom. विश्वास चुनने की बात नहीं है, एक आवश्यकता है राज्य में। Okay? हमें विश्वास सीखना पड़ेगा अगर जय में जीना है तो। We have to learn to operate in faith if we want to walk in victory. क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? असंभव है, मुश्किल नहीं है, असंभव है। Because it is impossible to please God without faith. It's not difficult, it's impossible. और फेथ क्या है? हमने अभी सीखा, फेथ इज बिलीविंग एंड स्पीकिंग। And we just learned what is faith. It is वो मानना और बोलना है। वो जो स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, The woman with the issue of blood for 12 years. उसने क्या किया? What did she do? वो बिस्तर में लेटी होगी कमजोर, She must be weak in पर her bed. फिर But then उसने देखा she saw अपने आप को उसके वस्त्र के छोर को छूते, that she was touching the hem of his garment. और फिर वो बोलने लगी, And she started saying, यदि मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो if I चंगी हो touch the जाऊंगी। hem of his garment, यदि I'll be उसके healed. वस्त्र के छोर को छू लूंगी If I touch तो the चंगी hem हो of his जाऊंगी। garment, I will यदि be उसके healed. वस्त्र के छोर If को I छू touch लूंगी the hem of his तो चंगी हो garment, जाऊंगी। I will be healed. वो देखती रही और बोलती रही और देखती रही और बोलती Kept on रही। saying,
सीक्रेट यीशु को छूना नहीं था. The secret was not touching Jesus. क्योंकि बहुत सारी भीड़ छू रही थी यीशु को, मगर जब उस औरत ने छुआ, power went out of Jesus. Because crowds was touching Jesus, but then when she touched him, यीशु में से सामर्थ्य निकली. Amen. When we can learn how faith operates, जब हम सीखते हैं कैसे विश्वास काम करता है, so you see your answer. आप अपने उत्तर को देखते हैं. So आप जानते हैं, मैं I'm telling you the truth before God. When I began to meditate on Ephesians 1 day and night, जब मैं इफिसियों 1 पर मनन करने लगा दिन रात, मेरे अकाउंट में कुछ 1000 रुपए हैं. my account had some thousands. But suddenly in my heart I'm feeling I have crores in my account. अचानक मेरे दिल में मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे पास करोड़ों पड़ा हुआ है. And I went to my wife मैं अपनी पत्नी के पास and गया. I said, what will we do with the crores that is in our account? मैंने कहा हम क्या करेंगे इन करोड़ों का जो अकाउंट में पड़े हैं And she हमारे. said, we will build the house of God. उन्होंने कहा हम परमेश्वर का घर And you are बनाएंगे. seated in the house of God today. और आप उस परमेश्वर के घर में आज बैठे हुए हो. Observation, believing, you see the answer. ऑब्जर्व करना, मानना, उस उत्तर को देखना है. God saw it in his heart. परमेश्वर ने अपने दिल में देख लिया. God spoke from his mouth. अपने मुंह से बोलने लगा. And God saw with his eyes. और अपनी आंखों से देख लिया. बोलो, दिल में देखूंगा, फिर मुंह से बोलूंगा, फिर इन आंखों से देखूंगा. Say, I will see it in my heart, I will say it from my mouth, and I will see it from these eyes. और सोचो, ये जो मैंने आपको वाटर एक्सपेरिमेंट बताया, ये वो लोग हैं जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, मगर क्योंकि परमेश्वर की उसमें बने, उनके कहने से भी इवन पानी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं. तो भैया, आपके अंदर तो परमेश्वर का आत्मा रहता है. You're anointed people. How much more with God's people? These experiments are done by those who are not born again, but you have the Spirit of God abiding in you. If their speaking can affect the water, how much more when you will speak? And that's why the anointed should be more careful what they speak. इसीलिए अभिषिक्तों को और ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं. जब हम शुरुआत में थे, जब भी हम मिलते रहे, पास्टर्स को हमेशा कहते रहे, ओहो दिल्ली में बहुत मुश्किल है, इट्स द वैली ऑफ ड्राई बोन्स, यहाँ पे कभी बड़ा नहीं हो सकता. हम लोग चुप रहते रहे. In the beginning, when we would meet pastors, they would say, दिल्ली तो सूखी हड्डियों की खाई है, nothing big can happen here, no big church can be here. We would be quiet. फिर अपने कमरे में आके मतलब नहीं, Then we'll go into our room and say, no, यहाँ पे बड़ा काम होगा. there will be a mighty work दिल्ली here. परमेश्वर की बेदारी को देखेगी. Delhi will see the हजारों revival of लोग God. कलीसिया में जाएंगे. Thousands will go to the Because church. for our God all things are possible. क्योंकि हमारे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है.